امریکہ، ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز پر عبوری معاہدہ آج متوقع۔ معاہدہ 60 روز کے لیے ہوگا۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق امریکی عہدیدار نے بتایا معاہدے کے مطابق ہرمز میں پھنسے جہاز، خلیج میں داخل ہونے والے تمام بحری جہازوں کی ٹریفک ایرانی حدود سے گزرنے والی شمالی لین سے گزرے گی۔ بحیرہ عرب کی جانب نکلنے والی ٹریفک ایران کی مشاورت سے عمانی حدود سے گزرنے والی جنوبی لین استعمال کرے گی۔ 60 روزہ مدت کے دوران کوئی ٹول یا فیس وصول نہیں کی جائے گی۔ امریکن صدر نے دھمکی دی اگر ایران مذاکرات سے پیچھے ہٹا تو سخت کارروائی ہوگی۔ عمان کے ساتھ معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز فوری نہیں کھلے گی۔ معاہدے کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے کی باخبر ذرائع کے حوالے سے رپورٹ۔ ایران کے عمان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنا امریکہ کے رویے میں تبدیلی اور اس کی خلاف ورزیوں کی اصلاح پر منحصر ہے۔ یمن کے قریب بحیرہ احمر میں بھارتی کارگو جہاز پر پروجیکٹائل حملہ، بھارتی جہاز غرق ہو گیا۔ کوسٹ گارڈز نے جہاز کے تمام عملے کو بچا لیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق واقعہ الحدیدہ کے جنوب میں پیش آیا۔ حکام نے کہا کہ جہاز پر 14 افراد سوار تھے، جن میں 13 بھارتی شہری اور ایک یمنی شامل تھا۔ ایران کا مذاکراتی عمل میں فلسطینی رہنماؤں کے فیصلوں کی حمایت کا اعلان۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ کے ساتھ ٹیلی فون پر گفتگو میں کہا ایران مذاکراتی عمل میں فلسطینی رہنماؤں کی طرف سے کیے جانے والے کسی بھی اقدام یا فیصلے کی حمایت کرے گا۔ وزیراعظم کے 2 روزہ سعودی عرب کے دورے کا شیڈیول طے۔ شہباز شریف کل شام 2 روزہ دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ اعلیٰ سطحی وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ وزیراعظم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اہم ملاقات کریں گے۔ 2 طرفہ تعلقات اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ امریکہ ایران جنگ اور امن مذاکرات سے متعلق تبادلہ خیال ہوگا۔ پاکستان کی مسجد اقصی میں انتہا پسند اسرائیلیوں کی دراندازی کی مذمت۔ مقبوضہ مشرقی بیت المقدس پر اسرائیل کی خود مختاری نہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق وزارتی اجلاس سے خطاب میں کہا مقدس مقامات پر اسرائیل کے قبضے کے مذموم مقاصد ناقابل قبول ہیں۔ غزہ میں انسانی صورتحال انتہائی ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ فلسطین کی آزادی کے لیے عرب اور مسلم ممالک کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسحاق ڈار کی اردن کے ہم منصب سے ملاقات۔ پاک اردن 2 طرفہ تعلقات میں پیش رفت کا خیر مقدم۔ مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ صدر مملکت کی جانب سے ججز تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری نہ ہو سکا۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت کا آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا فیصلہ آئین کے آرٹیکل 48 کے تحت صدر وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند ہے۔ ججز کی تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر مشاورت اگر صدر نے 10 دن میں دستخط نہ کیے تو سمری از خود منظور تصور کی جائے گی۔ قومی اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں مجوزہ قانون سازی پر مشاورت۔ حکومت کے 3 رہنماؤں کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم بیٹھک۔ وزیر دفاع پارلیمانی لیڈر خواجہ آصف نے اجلاس کی صدارت کی۔ اعظم نذیر تارڑ اور طارق فضل چودھری کی شرکت۔ اجلاس میں جوڈیشل کمیشن کی ججز تقرری کی سفارشات پر نوٹیفیکیشن میں تاخیر سے پیدا صورتحال زیر غور۔ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ حالیہ سیاسی تناؤ پر بھی مشاورت کی گئی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اگست کو طلب کرنے کا فیصلہ۔ قومی اسمبلی اجلاس 7 اگست کو شیڈول تھا۔ پاک ایران سرحدی تجارت کے فروغ اور 24 گھنٹے بارڈر کھلا رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اعلیٰ سطح کے ایرانی تجارتی وفد کی ملاقات۔ بہتر لاجسٹکس اور کسٹم طریقہ کار میں ہم آہنگی لانے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان خطے میں امن کے لیے اپنی مخلصانہ کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی مذاکرات کا 4تھا دور۔ دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرات میں دہشت گردی سے نمٹنے اور دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے پر اتفاق ہوا۔ داعش خراسان، القاعدہ، TTP اور BLA کے خلاف مشترکہ کارروائی پر بھی اتفاق ہوا۔
5 अगस्त 2019 तारीख का स्याह दिन। भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ और तकरीबात। इस्लामाबाद में वज़ारत ख़ारजा से डी चौक तक रैली। शुरका का मकबूजा जम्मू व कश्मीर के अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की आज यौम स्याह मनाने की अपील। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कश्मीरियों के साथ अपनी गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा, मुनसिफाना जिद्दोजहद को खराज तहसीन पेश किया। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि भारत के ज़ेर तसल्लुत जम्मू कश्मीर में अवाम की हकीकी सियासी क़यादत को मुसलसल दबाना, शहरी आज़ादियों पर कदगने आयद करना शदीद तशवीशनाक बात है। बैनुल-अक़वामी बिरादरी को इस देरीना तनाज़े के मुनसिफाना और देरपा हल के लिए अपना मौसर और जिम्मेदाराना किरदार अदा करना होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के सरबराहान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर मकबूजा कश्मीर के अवाम से इजहार यकजहती। मुसल्लह फ़ौज का भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौजी मुहासरा, इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। ISPR का कहना है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस का मुसलसल गैर कानूनी कब्जा बाइस तशवीश है। भारत की मकबूजा कश्मीर के इलाके की आबादी का तनासुक तब्दील करने की कोशिशें शदीद तशवीश का बाइस हैं। इश्तियाल अंगेज बयानात और जारिहाना तर्ज अमल खत्ते में अदम इस्तेहकाम को मजीद बढ़ाने की वजह बन रहे हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर वुज़रा और सियासी रहनुमाओं व कश्मीरी अवाम से यकजहती का इजहार। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों की जिद्दोजहद की सियासी, अखलाकी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब का आज़ादी की जिद्दोजहद में शहुदा के ख़ानदानों के सब्र और इस्तिक़ामत को सलाम। UN इंसानी हुकूक़ तंजीमों से संगीन खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेने की अपील। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि भारत कश्मीरी अवाम की शनाख्त मिटाने की कोशिश कर रहा है। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर पर मौसर किरदार अदा करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी कश्मीरी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा कि कोई यकतरफा इक़दाम तारीख, इंसाफ और किसी कौम की आवाज़ को नहीं मिटा सकता। वज़ीर आला सिंध ने कहा, भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल करारदादों के मनाफी हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने पेशावर में रैली की क़यादत की। सीनियर सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, कश्मीरी अवाम हक़ खुद इरादियत के लिए बेमिसाल कुर्बानियाँ दे रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से पाकिस्तान में तैनात अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने के इम्कानात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ की गई। ख्वाजा आसिफ का मुश्तरका अहदाफ के हुसूल के लिए मुसलसल राबतों की अहमियत पर जोर। कराची के रन्नी परी हैवानियत का शिकार। क़य्यूमाबाद में दिलखराश सानहा 1.5 बरस की बच्ची ज़्यादती के बाद दौरान इलाज दम तोड़ गई। कम उम्र मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। बच्ची के अहले खाना के मुताबिक मुलजिम करीबी रिश्तेदार है। वो अक्सर बच्ची को चीज़ दिलाने के बहाने साथ ले जाया करता था। इब्तिदाई पोस्टमार्टम में ज़्यादती के शवाहिद मिले। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मज़ीद हक़ाइक़ और मौत की वजह सामने आएगी। कराची के मीर रजा अली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर एतराज़ात। पुलिस सर्जन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 14 खामियों की निशानदही। SSP ईस्ट को मरासला अरसाल कर दिया। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाश के एक्सरे नहीं किए गए। गन शॉट रेजिड्यू के लिए हाथों के नहीं लिए गए हैं। गोली से लगने वाले जख्म पर मौजूद केमिकल तज्जिए के लिए नमूना हासिल नहीं किया गया। सर के मुआयने के लिए जिल्द नहीं हटाई गई। क्राइम सीन पर लाश की मुनासिब तस्वीर भी नहीं ली गई। मुतादिद CCTV फुटेजेस और तहकीकात के बावजूद पुलिस को कोई पुख्ता सुराग नहीं मिल सका। CCD सिंध ने मीर रजा की स्मार्ट वॉच अनलॉक करके अहम मालूमात हासिल कर ली। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक मीर रजा ने 28 जुलाई को अपने एक दोस्त से 3 करोड़ रुपए उधार मांगे थे। पुलिस को स्मार्ट वॉच की डाटा में लेन देन के हिसाब समेत दीगर मालूमात मिली। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी तजारती नुमाइंदे से वर्चुअल मुलाकात। पाक अमरीका तजारती और मुआशी ताउन के फ़रोग़ के लिए जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका इक़्तिसादी शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमरीका के साथ मजबूत तजारती शराकतदारी बरामदात बढ़ाने में मुआविन साबित होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत CDA हेडक्वार्टर्स में इजलास। नए तरक्याती मंसूबों का जायजा। मोहसिन नक़वी ने कहा, इस्लामाबाद में अवाम की सहूलत, ट्रैफिक की रवानी के लिए 2 अंडरपासेस बनेंगे। कश्मीर चौक और फैसल मस्जिद अंडरपास पर काम अगले माह शुरू किया जाएगा।
साज हैदर पुल का दूसरा हिस्सा जल्द मुकम्मल किया जाए, मंसूबे की रफ्तार बरकरार रखकर तमाम रुकावटें फौरी दूर की जाएं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की महकमा ट्रांसपोर्ट इजलास में गुफ्तगू। येलो लाइन मंसूबे की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। यूटिलिटी शिफ्टिंग और रीलोकेशन तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, येलो लाइन BRT कराची का अहम अवामी मंसूबा है। हुकूमत सिंध ने तमाम सरकारी और निजी स्कूलों में हफ्ते के रोज की तातील बहाल कर दी। फैसले के तहत तदरीसी औकात में 1 घंटे का इजाफा किया जाएगा। फैसला हुकूमत सिंध के किफायतशुमारी इक़दामात पर अमल दरामद और दस्तियाब वसाइल के मौसर इस्तेमाल के पेश नज़र किया गया है। महकमा तालीम सिंध का कहना है कि तालीमी इदारों में तदरीसी अमल पीर ता जुम्मा 5 दिन होगा। फैसले का इतलाक तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों पर होगा। चित्राल में ग्लेशियर फटने और क्लाउड बर्स्ट के बाइस दर्जन से जायद मकामात पर शदीद सैलाब आ गया। पेशावर शाहरा और चित्राल शिंदूर रोड मुख्तलिफ मकामात पर बह जाने और पुल टूटने के बाइस हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बरूज के मुकाम पर गम्बस गोल और बरूज गोल में सैलाबी रेले पुल बहा ले गए, जबकि 2 अफराद भी सैलाबी रेले की नजर हो गई। कई गाड़ियां भी रेले में बह गईं। लोया चित्राल की वादी करीमाबाद में सैलाबी पुल बह गया। कुराफ के मुकाम पर चित्राल मस्तूज शिंदूर रोड भी सैलाब की जद में आ गई। जिला गजर में भी सैलाब ने तबाही मचाई। हातून से आने वाले सैलाबी रेले ने दरिया का बहाव रोक दिया। हासिस गांव का बड़ा हिस्सा ज़ेर-ए-आब। दर्जन के करीब मकानात, मुतादिद दुकानें, मस्जिद और स्कूल मुतासिर। चल्लास में भी शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, ज़रई ज़मीनों और फसलों को नुकसान पहुंचा। दूसरे टेस्ट का चौथा दिन वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 75 रन का हदफ दे दिया। साजिद खान ने मैच में मजमूई तौर पर 8 विकेटें अपने नाम करके पाकिस्तान की फतह की राह हमवार कर दी। वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 117 रन बनाकर आउट। और रंग बरंगी सीपियों का दिलकश नज़ारा, इब्राहिम हैदरी का कोहली पाड़ा, हुनरमंदों का गढ़ जहां खूबसूरत सीपियों की भरमार है। हिंदू कोहली बिरादरी की कई नस्लें समंदर की तह से निकलने वाली सीपियों में अपने ख्वाब तराशती आई है।